Hello, how are you all people? I hope you all are fine. So let's discuss. We have already discussed polar stratospheric cloud. We have discussed peatland, how they are formed, how this oxygen is required for the respiration. Know the molecular form of oxygen. Other than this, how the marine heat wave create the persistent जो heat condition होती है over a surface of the water or whether water surface is what create marine heat wave. Number two, El Nino हो गया, ये जो ocean current हो गए, these are the source of the creating all this kind of condition, the marine heat wave, what we say, and sorry, what we call. Other than this, what we have studied uh, in the last PPT was about, I think, पीटलैंड हो गया है, फर्स्ट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड हो गया, एस्टिवेशन याद रखेंगे, फिशेस जो करती हैं, पोलर बियर जो करते हैं हाइबरनेशन याद करेंगे, डायपोज जो प्लैंकटन जो करते हैं डायपोज याद करते करेंगे, सक्सेसिव सॉरी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में जो वो अपना ये जो रोक देते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट रोक देते हैं, पोज कर देते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे, डायपोज बोलेंगे। इसके अलावा बट वी हैव, आई थिंक यही हमने डिस्कस किया था, जनरल ओवरव्यू हो गया, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। Consists the following statement. Number 8, the energy pyramid of ecosystem is not always upright and narrow to the top. So, okay. Number 2, generally the lower trophic level have higher biomass as compared to the higher trophic level. What is yours say people? So देखो ये हो गया एनर्जी पिरामिड, हमेशा अप्राइट तो नहीं होते, इन्वर्टेड पिरामिड भी होते, राइट, ये भी हमने देखा हुआ है। इसके अलावा जो क्या कह रहा है कि जनरली जो लोअर ट्रोपिक लेवल्स होते हैं वो is have higher biomass as compared to higher tropic level. Is it true in every case? Actually, let me think. Okay, thinking में थोड़ा time consume करना पड़ता है. We look at, I think biomass of the ocean is मतलब जो upper level होता है वो ज़्यादा होता है, I think lower level से, तो I would say कि मुझे तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं लग रहा है. I would prefer to stay neither one and not two. Consider the following statement. The grazing food chain is found in both terrestrial and aquatic ecosystem. Okay, number 2, the initial energy source for terrestrial food chain is a dead or organic matter. True. The grazing and terrestrial food chain are not interlinked. एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करती. I mean, in what sense? They are asking this. Interlinked in what sense? All three are correct. कि इंटरलिंक तो हो ही सकती है, यहाँ तक हम लिखता, फिर भी देखेंगे ये क्या कहते हैं. लेट्स गो क्वेश्चन. Seaweeds are potential indicator of pollution in aquatic ecosystem. I think that is true. Particularly heavy metal pollution due to their inability to bind and accumulate matter strongly. Number 2, product like agar and okay, iodine can be extracted from seaweeds. Number 3, rooting seaweeds release highly toxic gases. How many of the above statements are correct? I don't know. If you know the answer of this question, please give in the comment box. No one is watching, and that is also totally fine. Consider the following statement regarding ecological succession. Okay. The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological success. Number 8. Number 2, the entire sequence of communities that successively change in a given area is called series. That is true, I think. Primary succession begin in area where natural biotic communities have been destroyed. No, it would be the, I think, secondary succession, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन तो बिल्कुल completely न्यू एरिया में स्टार्ट होता है ना. I don't know, it is the exact definition of ecological succession. सीधे तो ठीक है. I'm not sure about the one. Oh no, this is the confusion. Also,
तो फिर भी गलत करने में भी ठीक रहता है, तो आई वुड से ओनली 2. However, I want to say only one, but still I would say only two. Number 5. Consider the following statement regarding biomass gasification. Number 1. Biomass gasification is the process of converting solid biomass fuel into a gaseous combustible gas through a sequence of thermochemical reaction. Number 1. Number 2. Coconut shell, groundnut shell, and the wheat straw can be used in biomass gasification. Number 2. Number 3. The combustible gases generated from biomass gasification consist of only hydrogen and carbon dioxide. When only comes maybe it's look extreme things, so we can have focus on that. Okay, how many of the above statements are correct? I don't know the answer, so I would prefer not to give answer of this question. If you know, please mention in the comment box. Let's move to the answer section. Okay, people. Here is the तो इसमें जो भी here is the first question. तो देखो only two statement. इन्होंने यहाँ पे generally word use किया है. So I think I haven't given the enough focus on this word. But I was discussing this, लेकिन हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ही ली थी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता. तो ये कह रहे हैं कि कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम छोड़ दे तो जनरली ऐसा होता है कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल हैं उनका बायोमास कैसा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपर ट्रॉपिक लेवल. ये तो है ही, ऑफकोर्स उनका बायोमास तो ज़्यादा रहता ही है. जैसे अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में कितने सारे पेड़ पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उनका बायोमास ऑफकोर्स किससे ज़्यादा होगा, ये जो कंज्यूमर हैं, ये भाई इतने बाग वाग वगैरह जितने भी और प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं. लेकिन वो जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें जो आई थिंक जो प्रोडक्शन होती है वो पेड़ पौधे कुछ इस तरह के होते हैं उनकी डेली बेसिस पे होती है. अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो एनिमल आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे जो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो कंज्यूम कर रहे हैं और फोटो प्लैंक्टन्स का जो कंज्यूम कर रहे हैं, आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा वेरी कर जाता है उसमें. ओवरऑल तो शायद होगी, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम पे हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा वेरी करता है. तो ये इन्होंने क्या कहा है कि जो ये क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी पिरामिड होता है, अच्छा ये हमें ना अच्छी एक्चुअली आई हैवंट गिव इनफ फोकस टू दिस एनर्जी वर्ड आई थिंक. तो ये इन्होंने सिर्फ एनर्जी पिरामिड के बारे में पूछा था. ओपन इकोसिस्टम इज नॉट ऑलवेज ये अपराइट ही होता है एंड नैरो एट द टॉप. ये नैरो ही हुआ क्योंकि मान लो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, इस मतलब प्राइमरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये थर्ड लेवल कंज्यूमर है और ये मतलब आगे है. तो अगर ये आप बात करेंगे कोई पेड़ पौधा है, उसको पेड़ पौधे को खाने वाला एक कंज्यूमर है, तो यहाँ से जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी, आई थिंक 10% का क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. फिर इससे जितनी एनर्जी इसको मिली, इससे भी यहाँ पे मान लो 10% की एनर्जी लॉस हो गई, तो इसको भी तो बेसिकली एनर्जी तो हर एक ट्रॉपिक लेवल जैसे ही इंक्रीज करेगा ना, उसके ट्रॉपिक लेवल की इंक्रीज करने पर भी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिड्यूस होगी हर ट्रॉपिक लेवल पे. जैसे ये एनर्जी पिरामिड है, 100% एनर्जी है, इस पे जाएंगे तो एनर्जी रिड्यूस हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएंगे तो और एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, थर्ड पे जाएंगे तो और एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, इसके पास जाएंगे तो और एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी. इनको एनर्जी मिली थी सन से. तो ये क्या है, तो बेसिकली यही था ये क्वेश्चन. देयर वाज नथिंग देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्होंने क्या कहा है, 3 इज इनकरेक्ट. ग्रेजिंग एंड टेस्ट फूड आर नॉट इंटरलिंक्ड. ये शायद हमने कहा था कि इंटरलिंक तो होते ही हैं. आई डोंट नो मैंने आंसर क्या किया था एक्चुअली. मैंने इस पे और बाद में बना रही हूँ आगे वाली स्लाइड की, टाइम नहीं था उस वक्त, तो आई स्टॉप देयर. तो लेट्स सी क्या बोला है मैंने. यही बताया गया है. अब इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं एक्सप्लेन करने का. देखो यही है कि मान लो देखो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. मान लो एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म. जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फीड करता है, एक दूसरे पे अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. अगर इसको कॉम्प्लेक्स बना देंगे आप तो फूड वेब हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन को. अगर आप उसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगी, फूड वेब. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ ऑप्शन है टू ईट के लिए, फिर इसके आगे जो हायर टॉपिक लेवल पे उसके पास भी नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे, वो क्या बन जाएगी, एट फूड चेन बन जाए, फूड वेब बन जाएगी. तो ये क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है और एक्वेटिक भी हो सकती है. इसमें बेसिकली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे पहले,
इसमें क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर होते हैं पहले ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको फिर हेटरोट्रॉफ कंज्यूम कर लेते हैं, जो इस पे पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और इंटरलिंक्ड होती है। मान लो ग्रजिंग फूड चेन पे यहाँ पे भी कोई भी डेड हो रहा है, एट द एंड डेड किसके लिए सोर्स बन जाएगा, किसके बिगनिंग बन जाएगा, डेट इज फूड चेन की। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डेड ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक जो मैटर उसमें सर्वाइव करते हैं, वो फिर जो उन पे जैसे प्रेडेटर हो गया या फिर और जितने भी उन पे रिलाय करते हैं, वो डेट्रीवोरस हो गया, डिकम्पोजर हो गया, उस तरह की फिर ये आगे बढ़ती है डेट्रीवरस फूड चेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने कि ये जो प्लांट बॉडीज है, जो मैटर ऑफ डिकेइंग है, एनिमल एंड प्लांट बॉडी टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट देन टू डेट्रियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, जो डेट्रियस को फीड करते हैं वो क्या है, डेट्रीवोरस हो गया, डिकम्पोजर एंड टू अदर प्रीडेटर्स। तो इस तरह की जो है डेट्रियस जो है फूड चेन है। So that this third question is about the seaweed and all the option are correct. तो बेसिकली सीवीड क्या है, इसलिए अगर आप सीवीड में ना सीवीड के रिगार्डिंग एक फंड भी क्रिएट किया गया था, एक पॉलिसी भी आई थी कि जो फार्मर है उनसे सीवीड ग्रो करवाएंगे, प्रोड्यूस करवाएगी गवर्नमेंट, एंड ताकि उनको थोड़ी अच्छा सा मुनाफा हो सके। तो इस रिगार्डिंग पॉलिसीज भी आई हुई है, तो सीवीड इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। और सीवीड के जैसे काफी सारे फायदे हैं, ये पोल्यूशन को भी पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अदर लाइक ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, जो ऑक्सीजन के जैसे जो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। इवन द प्रोवाइड दे प्रोवाइड ओके। इसके अलावा काफी, इसके अलावा हम देखो टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं। हाँ जी, टॉक्सिक गैस भी रिलीज करते हैं। और ये प्रोडक्ट देखो, ये मुझे ऐसा याद नहीं था कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट है, तो वो भी आपको ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें कोई लॉजिक लगा लेंगे, थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो हमें सीविड से मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बताया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि कैसे जैसे रूटिंग जो ये सीविड है वो कौन सी गैस हाईली टॉक्सिक गैस है, कौन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे क्या होता है वो सोर्स होता है उसका। ओके। इसके अलावा ये इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के ये कोस्टल एरिया में। प्रोडक्ट हो गया आगर अगर हो गया, एल्किनेट हो गया, आयोडाइन हो गया, ये क्या है कमर्शियल वैल्यू होती है इनकी, और ये सीवुड से एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो हम ये भी याद रखेंगे। So there is nothing to explain, there is something that you need to remember। आप गूगल करिए, इमेज वगैरह सीन करिए और थोड़े से आर्टिकल्स के रिगार्डिंग पढ़िए कि सरकार ने इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। हाँ, that would be enough I think, and can also focus on the revision। This is something which is the most important thing in this examination। So let's move to the next question। ये तो वही है, पढ़ना है आप पढ़, मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन है इकोलॉजी सक्सेशन पे। द ग्रेजुअल एंड fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession। C, of course. Number two, the entire sequence of communities that successively change in a given area are called series। That is also true where the primary success began in an area where natural biotic communities have been destroyed। No, बिकॉज जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो जैसे ये लगा लो कोई लैंड है या तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक चीज वहां से कुछ कुछ कोई चीज रिमूव हो जाए, वहां पे दोबारा ग्रो करे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन और द प्राइमरी सक्सेशन। तो पहले वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था और सडनली वहां पे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लॉन्ग पीरियड ऑफ चेंजेस के बाद अगर वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो ये भी डिस्कशन यहाँ भी देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम देखेंगे सक्सेशन क्या होता है, कि एक प्रोसेस है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि या तो एक ऐसा एरिया हो अभी फिलहाल कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर एक ऐसा एरिया हो जहां आज से पहले कभी कोई किसी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया ही नहीं,
तो अगर पहले कहीं वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, और वहाँ पे जैसे बेयरली रोक वगैरह ही है और ब्रेक डाउन हो जाए या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो जाए, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, पहले एग्जिस्ट करता था बट अब एग्जिस्ट नहीं करता और दोबारा से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिगिन इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो गई है वहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, कट फॉरेस्ट हो गए, लैंड जो फ्लडेड हो गए हैं, तो ये सब इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा ये भी इन्होंने बताया कि मान लो ये कोई न्यू एरिया है, अब जिस न्यू एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गए या फिर कोई पहले ये अब पहले यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करती थी स्पीशीज, अब एग्जिस्ट नहीं करती, दोबारा से स्पीशीज सिस्टम है डेवलप करना स्टार्ट कर रही हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, स्पीशीज में भी चेंजेस आते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी चेंज आए हैं, और जैसे जैसे अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारे जो आगे जो जनरेशन्स होंगी उनमें उसी तरह के चेंजेस आते रहेंगे। हमारा मे बी माइंड वर्किंग चेंज हो जाए, शायद थंब चेंज हो जाए, क्योंकि जितना भी काम हम कर रहे हैं उंगलियों से लैपटॉप पे या फ़ोन से, जितना भी हम काम अपना अंगूठा जितना यूज़ कर रहे हैं, मे बी अंगूठे और उंगलियों में उतने चेंजेस हो जाए, और जितना भी आंखों का यूज़ हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखने के लिए यूज़ करें, मे बी आंखों में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए इवोल्यूशन के साथ साथ। तो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो एट द एंड जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एक स्पीशीज डेवलप होती है ना, कि दिस इज दैट स्पीशीज, यू कैन से द परफेक्ट स्पीशीज फॉर दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन एंड फॉर दैट टाइप ऑफ जियोग्राफी, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्लाइमेक्स स्पीशीज बोलते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्होंने बोला है कि दे चेंजेस लीड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो उसको हम कौन सी कम्युनिटी बोलेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। और अगर ये ग्रेजुअली और जो फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज होता है स्पीशीज की कंपोजिशन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसी सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती है, और कुछ स्पीशीज क्या होती है? भाई उसमें सर्वाइव कर जाती हैं और अपने हिसाब से चेंजेस करके एट द एंड क्लाइमेक्स स्पीशीज बन जाती है। और इसके अलावा इन्होंने सी क्या बोला है? सो नाउ लेट्स एक बार सीरियो समझ लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में आग लग जाती है और सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं और अब हमारे पास एक बेयर लैंड ही बचता है। तो उस बेयर लैंड पे क्या होंगे? दोबारा से जो पाइनोर स्पीशीज है वो होना स्टार्ट होंगी। पाइनोर स्पीशीज का मतलब जो स्टार्टिंग में जो डेवलप होती है उस पर्टिकुलर बेयर एरिया पे, तो बेसिकली उस जो हार्श कंडीशन है इन द बिगिनिंग, उसको कौन टॉलरेट कर सकता है? मोशिस हो गए, लीचन्स हो गई, ये वाली स्पीशीज स्टार्ट हो गई, तो हम ये मान के चलेंगे कि पाइनोर स्पीशीज होगी, राइट। इसके बाद दूसरी जो स्पीशीज होंगी कि भाई अर्ली सक्सेशन का टाइम है, चेंज का टाइम है, चेंजेस हो रहे हैं, तो ग्रास एंड शब्स डेवलप होंगी। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी तरह की डेवलप होंगी? लार्ज ट्री डेवलप होंगे, और जो ये प्लांट्स डेवलप होंगे, शेड। उसके बाद क्या आ जाएंगे? उसके बाद मैच्योर फॉरेस्ट आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोलेंगे। जैसे ट्री आ गए, शब्स आ गई एंड अदर प्लांट्स, तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीरे। जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी सक्सेसिवली चेंज हो रहा है, लगातार जो चेंज हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी जो ये कम्युनिटी थी तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो ये चेंज हुए हैं फ्रॉम प्राइमरी टू क्लाइमेक्स, इसी को क्या बोलेंगे? सीरीज। तो हमें ये याद रखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? जो ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं स्पीशीज, उसी को क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजिकल ये क्या बोलते हैं? सक्सेशन बोल रहे हैं ये। भाई पहले एक बेयर लैंड था, फिर प्राइमरी आई, फिर क्लाइमेक्स आ गई। इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में कोई भी स्पीशीज आ जाती है तो उसको क्लाइमेक्स, आई एम सॉरी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोल देते हैं। तो बस आई थिंक दैट इज ऑल। सो लेट्स मूव टू। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि मान लो ये कोई भी एरिया है, यहाँ पे एक स्पीशीज कोई भी प्लांट स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज डेवलप होना स्टार्ट होती है, उसको पाइनल स्पीशीज बोलते हैं। फिर एक दूसरी स्पीशीज डेवलप होती है, थर्ड स्पीशीज डेवलप होती है, और एट द एंड एक ऐसी स्पीशीज डेवलप होती है कि जो इक्विलिब्रियम में होती है इन्वायरमेंट कंडीशन के साथ, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीशीज। तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो डेवलप हो रही हैं, तो बेसिकली द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सीरे बोलते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, द इंडिविजुअल जो ट्रांजिशन है, मान लो पहले ये थी, ये इंडिविजुअल है,
दूसरी ये थी, ये भी इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटीज हैं उनको क्या बोलते हैं, सीरियल स्टेजेस बोलते हैं। तो ये सीरियल स्टेज थी, ये सीरियल स्टेज थी, ये भी सीरियल स्टेज थी, और ये भी सीरियल स्टेज होगी। लेकिन जो ये प्रोसेस है चेंज होने का फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, एंड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस थिंग्स टू दिस थिंग टू द एंड, इज समथिंग व्हिच वी कॉल succession. It can be primary succession or it can be secondary succession. So gradually and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. तो ये प्रोसेस है, और जो वो सीरियल स्टेजेस चेंज होना है उसको क्या बोलेंगे, हम सीरे बोलेंगे। तो इन्होंने क्या पूछा है, पहले इन्होंने पूछा है कि जो बायोमास गैसिफिकेशन होता है इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोलिड बायोमास फ्यूल इनटू ए गैसियस कंबस्टिबल गैस थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये ट्रू है। बेसिकली बायोमास क्या होता है, जो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, उसको हम बायोमास में मिलते हैं। जैसे कोकोनट शेल भी किस में आएगा, ये वुड बायोमास है, जो वुड से हमें मिलता है। ग्राउंडनट शेल्स हो गए, व्हीट स्ट्रो हो गए, और अदर जितने भी ये डिग्रेडेबल थिंग्स होती हैं उनको हम मान लो इकट्ठा करेंगे। बायोमास गैसिफिकेशन एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है, जैसे कि आप उन सबको इकट्ठा करोगे, फिर उसको ड्राई करोगे, फिर पायरोलिसिस होता है, यानी कि उसको एक हाई टेम्परेचर पे रखोगे, उसके बाद जैसे गैसिफिकेशन करोगे उसका, उसके बाद फिल्टरिंग करोगे, स्क्रबिंग करोगे, उसके बाद फिर इम्प्योरिटीज रिमूव करोगे, तब जाके हमारे पास ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, और जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह की गैसेस हमें मिलती हैं। बेसिकली हम ये क्यों करते हैं, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो वो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो वेस्ट है हम वेस्ट को इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं काफ़ी सारे को, और जो भी गैसेस यहाँ पे मिलते हैं आप उनको जैसे काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, या फिर टर्बाइन रोटेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डीजल और पेट्रोल में जैसे ब्रांड वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है गैसिफिकेशन की। सो वेरी तो ये क्या है, इन्होंने तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ये भी ठीक है कि जो बायोमास है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, कंबस्टर गैसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू थर्मोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। नंबर ठीक है ये क्या कह रहा है कि जो कंबस्टेबल गैस होती है जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन, उनमें सिर्फ दो ही गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। जी नहीं, और भी गैसेज होती हैं, जैसे कि देखो इसमें इन्होंने लिखा भी है कि प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक एंड जो फोसिल्स हैं बेस्ड कार्ब जिसमें कार्बन अवेलेबल हो, कार्बोनेशियस मटेरियल एट हाई टेम्परेचर पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं विदाउट कंबशन, उसको जलाए बिना, विद ए कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम जैसे गैसिफिकेशन में कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, एंड स्टीम इनटू उसको एंड ऑक्सीजन एंड, और या फिर स्टीम हम लेंगे उसमें, फिर उसमें कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हो गया। इसके अलावा जो इन्होंने बायोमास की डेफिनेशन दी है कि एक रिन्यूएबल, यानी कि जो दोबारा एक शॉर्ट पीरियड में दोबारा उस चीज़ को क्रिएट किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। कुछ चीज़ें नॉन रिन्यूएबल होती हैं, जैसे कि हम उसको दोबारा, जैसे आप फ्यूजल्स की आप बात करें, फ्यूजल को हम जैसे जितने भी जैसे ये जितने और हमें कोयला वगैरह मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड में हम उनको दोबारा रिगेन नहीं कर सकते। कोयला बेसिकली कब बना है, जैसे कि जब ये फॉसिल वगैरह थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक ये दबे रहे हैं ज़मीन के नीचे, तब जाके कोयला बने हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप जनरली दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जैसे वुड एक्सट्रैक्ट्स हैं, या फिर एनिमल जो वेस्ट हैं, वो सब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम दोबारा इसको शॉर्ट पीरियड में हम वो बना सकते हैं, उनको रिन्यूएबल बोल देते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि रिन्यूएबल ऑर्गेनिक सोर्स है नंबर एक, इंक्लूड एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यू हो गया, या फिर देखो कॉर्न स्ट्रो हो गए, व्हीट स्ट्रो, एग्जांपल दिए हैं। फॉरेस्ट रेजिड्यू हो गया, स्पेशल क्रॉप ग्रोन स्पेशली फॉर एनर्जी यूज सच एज स्विच ग्रास एंड विलो ट्रीज हो गया, ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, हम सब इन्हीं की बात करें, सब किस में आता है, बायोमास में। तो ये भी हमने देख लिया। हम ये देख रहे थे कि हमने क्या-क्या देखा था। हमने भाई ये देखा कि बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है, कि जब हम बायोमास को किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू गैसेज़ में, जो कंबस्टिबल गैसेज़ होती हैं, उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोमास गैसिफिकेशन बोलते हैं। किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंबस्टिबल में। इसमें सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन भी होती है, इसके अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, CH3 हम लिखेंगे इसको,
ओके। इसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी होते हैं, हम ये याद रखेंगे। इसके अलावा हमने देखा था एनर्जी वाला पिरामिड देखा था। वो क्या हो रहा था कि ऊपर से नैरो था और नीचे से वाइड था। बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी फ्रॉम जब एक एनर्जी ट्रांसफर होती है जैसे यहाँ से अगली स्टेज पर, तो हमेशा हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। ओके, तो ये भी याद रखेंगे। इसलिए क्या होता है, ये ग्राफ अपराइट है और इसके ये क्या नाम है, अपराइट है, ऊपर से नैरो है, नीचे से वाइड है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, यूजुअली ऐसे ही ग्राफ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी बात कर रहे थे, वेट के हिसाब से बात कर रहे थे कि वेट के हिसाब से क्या यूजुअली ये जनरली ऐसा ही ग्राफ होगा। जनरली ऐसा होता है, लेकिन आप अगर इक्वेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो इक्वेटिक सिस्टम में जो सबसे लोअर लेवल है उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल का वेट उसका ज़्यादा होता है, उसमें चेंज रहता है। आप एक बार ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमने और क्या देखा था कि हमने हमने देखा था फूड चेन एंड फूड में ये फूड चेन एंड डेट्रियस फूड चेन एंड ये जो कौन सी फूड चेन होती है दूसरी, इसको ग्रेजिंग फूड चेन आई थिंक इंटरकनेक्टेड है। आपको जब मान लो कोई भी है, यहाँ पे एक एनिमल है, ये इसको दूसरा इसको खा रहा है, दूसरा है वो इसको खा रहा है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर जो टेरिटरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है। मान लो ये मर जाता है तो यहीं से क्या स्टार्ट हो जाती है, डेट्रियस फूड चेन। जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वहीं से स्टार्ट होती है, उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनको खाने वाले और आएंगे, उसी से क्या होता है, तो इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये भी हमने देख लिया। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हमने सीरे और इकोलॉजिकल सक्सेशन देखा, जो प्रोसेस है। मान लो चाहे अगर बिल्कुल ही बेर एरिया में चीज़ें स्टार्ट हो रही है, उससे पहले वहाँ पे कोई भी स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट करती थी, या किसी और तरह की कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी स्पीशीज से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या है, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। यहाँ पे पहले वहाँ पे सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, फिर बाद में कुछ हुआ, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन हुई, फिर वहाँ पे सब कुछ वाइप आउट हो गया और दोबारा से चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट होना शुरू कर रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। प्रोसेस है चेंज का। और जो ये सीरियल कम्युनिटीज़ हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ हैं, जो मतलब यहाँ पे कम्युनिटी आई जिसको जो सबसे पहले डेवलप होती है उसको प्राइमरी, और उसको जो लास्ट में डेवलप होती है उसको क्लाइमेक्स, सॉरी इसको कौन सी कम्युनिटी बोल रहे थे हम, प्राइमरी बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, कुछ और बोल रहे थे। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली रिकॉल द नेम। ओके, हम याद अब तो याद नहीं आएगा, इतना जल्दी कैसे याद आ जाएगा, मुझे खत्म भी करना है, 26 मिनट का ऑलरेडी हो गया ये। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, तो ये जो कम्युनिटी में चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सीरे बोलते हैं। तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा हमने और क्या देखा, बायोमास गैसिफिकेशन तो हो गया, फूड चेन का हो गया, पिरामिड का हो गया, एंड द लास्ट थिंग दैट हैज लेफ्ट। ओके, अभी रिसेंटली तो फोर्थ क्वेश्चन तो था आई थिंक। Okay, it was related to what? That is trained. How I am not able to recall. Biomass gasification, ecological succession, and the one in between them was अब हमने सीवीड्स के बारे में देखा था। एक तरह की एल्गी होती है, ना कोई स्टेम होता है, ना कोई लीव होती है, ना कोई इसकी रूट्स होती हैं, एल्गी है। काफ़ी सारी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैस है, उसका ये सोर्स होती है। मतलब एक जो उसका नाम भी था वो कौन सी उसका सोर्स होती है, तो ये याद रखेंगे। काफ़ी सारे कमर्शियल यूज़ भी हैं, ये ड्रग्स में भी यूज़ होती है भाई। हम फूड में भी यूज़ करते हैं, ह्यूमन को एनिमल के फीड में यूज़ होती है, फर्टिलाइजर में भी यूज़ होती है। क्या है, सीवीड्स, जो हम सीवीड्स की बात कर रहे हैं, और ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी होती है, तो ये भी हम हल्का याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे पीपल।